now request the principal of Sobhasaria Group of Institutions, Dr. Sudhir Kumar Rathi, to share briefing of the activities of Honorable Shri Sumedanand Ji Saraswati, Member of Parliament Seeker, Shri Rajendra Ji Parikh, Ex-Minister Government of Rajasthan, Shri Ratan Ji Jaldhari, MLA Seeker, Janab Jeevan Khan Ji, Chairman Nagar Parishad Seeker, Honorable Chairman Sir Shri P.R. Agrawala Ji, Honorable Vice Chairman Shri G.P. Agrawala Ji and Shri K.B. Agrawala Ji, and Shri Prem Shankar Tripathi Ji, Shri Sunil Moore Ji, invited guests, media persons, faculty members, dear students, ladies and gentlemen. First of all, I would like to express my sincere gratitude to His Excellency Shri Kesari Nath Tripathi Ji, who in spite of a busy schedule accepted our invitation and graced the occasion by his presence. Today we have completed 18 glorious years of the existence of this group. I am proud to say that this college has been able to establish itself as one of the best colleges in Rajasthan. This has been possible because of the Honorable Chairman's guidance and inspiration. I am pleased to state that we have created an excellent academic environment in the institute that leads to all-round development of students' personalities. This year, we have achieved many milestones and take a lot of initiatives for the betterment of our students. We have got PhD Research Center in Computer Science and Engineering, Electrical Engineering and MBA department. We organized many workshops and short-term courses for students and faculty members. I am proud to say that our students have also given us a return gift in the form of various research and academic related recognitions and awards on national and global platforms. I have been associated with this institute for almost 3 years. During this stint, we have focused on academic improvement to ensure high rate of placements in good companies and to start in-house training program to make students ready for the industry and higher education in India and the globe. With all modesty, I wish to say that we have succeeded on all fronts to achieve something tangible. I am aware that there is no time to relax. We have many more miles to go and make Sobhasaria an ideal institute in Rajasthan. For this, we would like to strengthen our placement efforts. We shall arrange more courses required by the industry. In the end, I would like to thank the chief guests, Honorable Chairman Sir, Vice Chairmen, guest of honors, who have taken the pain of north icy wind to come and grace the occasion. Thank you all. Jai Hind. 19वें स्थापना दिवस पर पधारे हुए हमारे परम सम्मानीय महामहिम केसरी नाथ जी त्रिपाठी साहब, परम सम्मानीय क्षेत्रीय सांसद सुमेधानंद जी सरस्वती साहब, पूर्व सरकार के कैबिनेट मंत्री परम सम्मानीय राजेंद्र जी पारिक साहब और क्षेत्रीय विधायक परम सम्मानीय रतन जी जलदारी साहब और सोभासारिया इंस्टीट्यूट के A.R. अग्रवाल साहब, साहित्य श्री प्रेम शंकर जी त्रिपाठी साहब और सम्मानित मंच। सबसे पहले मैं सम्मानीय महामहिम केसरी नाथ जी त्रिपाठी का इस शेखावाटी, सपूतों की धरती और सीकर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सोभासारिया इंस्टीट्यूट हर साल निरंतर बच्चों की शिक्षा में इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट जो देश और राजस्थान को यहाँ से बच्चे निकल के देश की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। हमारे सोभासारिया जी परिवार तो आज तो हमारे सीकर में आप जिस तरफ भी देखेंगे हर तरफ इंस्टीट्यूट
सब दिखेंगे, लेकिन आज से 19-20 साल पहले यहाँ पे शिक्षा की कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूट नहीं थी जिससे बच्चे पढ़ करके आगे प्रोग्रेस करें। आज सीकर शिक्षा नगरी में जो बढ़ाया उसकी जन्मदाता शोभासरिया इंस्टीट्यूट है। मैं शोभासरिया परिवार से को और बधाई देना चाहूँ कि आप इसी तरह सीकर शहर में जो अपनी जन्मस्थली के प्रति अपना कर्तव्य जो निभा रहे हैं, इसी तरह निभाते रहें। और भगवान से, मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपको और खूब तरक्की दे और इसी तरह आप सीकर शहर और सीकर की जनता को शिक्षा में अधिक से अधिक योगदान दे। जय हिंद, जय भारत। शोभासरिया इंस्टीट्यूट के 19वें स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में महामहिम बंगाल के राज्यपाल केसरीनाथ जी त्रिपाठी जी, सीकर के सम्माननीय और माननीय सांसद स्वामी सुमेधानंद जी महाराज, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार राजेंद्र जी पारिक, नगर परिषद के सभापति जीवन खान जी, PR अग्रवाल साहब, चेयरमैन ऑफ शोभासरिया इंस्टीट्यूट GV अग्रवाल साहब और सभी प्रिंसिपल साहब, सभी पधारे हुए अग्रणी अतिथिगण और सभी स्टूडेंट्स। शोभासरिया द्वारा 19 साल पहले यहाँ पे अपनी नींव रख करके और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो आगे बढ़ने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो प्रोत्साहन किया है, उसके लिए मैं शोभासरिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि शोभासरिया परिवार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो आने वाले समय में शिक्षा ही एक ऐसा साधन है, तो उस साधन के द्वारा आदमी चाहे जितनी बड़ी पोस्ट के ऊपर पहुँच सकता है। शोभासरिया इंस्टीट्यूट आज हमारे पूरे राजस्थान में ही नहीं, देश में MBA के अंदर 10वें स्थान के ऊपर है। 9th, 10th, 11th and 13th sessions of the Rajasthan Legislative Assembly. His contributions to the public welfare are well recognized and acknowledged among the people of the region. We now request our honorable guest Shri Rajendra Ji Parekh to share his valuable words with us. सीकर की परंपरागत व्यवसाय में लगे हुए शोभासरिया परिवार, उनका एक एवर यूथ, यंग, एनर्जेटिक, विजनरी, इनोवेटिव आइडिया से भरा हुआ नौजवान, जो अपनी पत्नी, जो मेरे सामने उनकी मिसेज बैठी हुई है, उनकी प्रेरणा से प्रहलाद राय जी अग्रवाल ने 18 वर्ष पूर्व एक छोटा सा बीज इस धरती पे लगाया, शोभासरिया इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम। और हमें फक्र है इस बात को कहते हुए कि वो छोटा सा बीज आज एक वटवृक्ष की शक्ल में हमारे सामने है। और ये जो कुछ आप सामने देख रहे हैं, पूरा एक एम्पायर, ये प्रहलाद राय जी की जो इनकी बहुआयामी प्रतिभा है, उसी का परिणाम है। परंपरागत व्यवसाय से निकल करके एक व्यक्ति नए आइडियाज के साथ में जब कुछ करने की ठानता है, तो निश्चित रूप से कोई ऐसी शख्सियत उनके पीछे होती है, कोई विभूति ऐसी पीछे होती है उनको, जो उनको प्रेरणा देती है। और उन्हीं प्रेरणाओं का परिणाम है आज हमारे सामने। स्वागत करता हूं और इस बात के लिए आपको बधाई देता हूं कि एक बेस्ट पार्लियामेंटेरियन के रूप में आपने अपना जीवन जो निकाला, हम सब उसको प्रेरणा लेते हैं। श्री केसरीनाथ त्रिपाठी जी, उनके साथ हमारे बीच पधारे शिक्षाविद मान्य श्री प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, राजस्थान के पूर्व मंत्री मान्य श्री राजेंद्र पारिक जी, सीकर के सम्मानीय विधायक मान्य जलधारी जी, सीकर के
नगर परिषद के चेयरमैन माने भाई जीवन खान जी, इस संस्थान को अपना आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ा रहे माने PR अग्रवाल साहब, माने कुंज बिहारी जी, यहाँ के सम्मानीय प्राचार्यगण, सभी शिक्षक बंधु, शोभा सरिया परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, मेरे सामने उपस्थित सीकर शहर के सभी सम्मानित नागरिक बंधुओं, हमारी सभी सम्मानित बहनें, यहाँ उपस्थित सभी छात्रों छात्राएं। किसी संस्था का स्थापना दिवस या वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अपनी संस्था की उपलब्धियों को समाज के सामने, अभिभावकों के सामने उपस्थित करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है। माने पारिक साहब और जलधारी जी अभी आपके सामने कह रहे थे, माने बाबू बैजनाथ जी के सानिध्य में उनके पुत्रों ने, उनके परिवार ने एक वृक्ष का रोपण किया बीज के रूप में, और आज धीरे धीरे वो वट वृक्ष का रूप धारण करता जा रहा है। मैं सबसे पहले माने बाबू बैजनाथ जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनकी आत्मा भी आज इस पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद दे रही होगी। बंधुओं, सीकर वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में न केवल राजस्थान बल्कि संपूर्ण भारत में अपनी एक विशेष पहचान बना चुका है, और उस पहचान का जो सूत्रधार है, जो पहल करने वाली संस्था है, उसमें इस शोभा सरिया इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए तो मैं परिजनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। और मेरे सामने जो युवा पीढ़ी बैठी है, पारिक साहब ठीक करें कि हमारे बच्चे पीछे बैठ करके जो कुछ थोड़ा बहुत हलचल कर रहे हैं, हमारी भी कॉलेज की बातें स्मरण होती हैं, लेकिन मैंने कभी हुटिंग नहीं की। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं साइंस का छात्र रहा, वेद का, दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी रहा, ये काम मेरे बस का नहीं था, और मैं शिक्षक भी रहा, तो मेरे सामने भी कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं आई। तो मैं आशा करूंगा कि मेरे युवा जो बैठे हैं आज हमारे बीच में, एक बहुत बड़े विद्वान बंधुओं, केवल बात गवर्नर की नहीं है, केवल राजनेता की नहीं है, हमारे बीच में जो डिग्निटी है, जो व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, मैं भी आज इसलिए उपस्थित हुआ कि इनसे हमें कुछ सीखना है। और कभी कभी ऐसा मौका मिलता है, इस प्रकार के लोग हमारे बीच में आते हैं जो अपनी जिंदगी के अनुभव में बांट करके जाते हैं, पहचान लेकर के जाए, छाप लेकर के जाए कि मैं राजस्थान की उस धरा पर गया था जिस धरा ने पूरे देश और विदेश को उद्योगपति दिए हैं। मैं राजस्थान की उस धरा पर गया था। त्रिपाठी जी, जिस गांव में जाएंगे उसी गांव में आपको शहीदों के स्मारक मिलेंगे। हमारे किसानों ने अनाज पैदा किया, हमारे व्यापारियों ने अपने यहाँ तो कहावत है कि जाने पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंच जाए मारवाड़ी, और मारवाड़ी में भी शेखावाटी का आदमी आगे लीड बनाता है। आप देखते हैं कि खेत में नई लीड जो पड़ती है, गाड़ी निकलती है, उसको जोर आता है, बाद में गाड़ियां चली जाती हैं, तो शेखावाटी के व्यापारी माने प्रधानमंत्री जी के पास बैठा, और उन्होंने एक बड़ी पीड़ा की बात कही कि इंजीनियरिंग कॉलेज है, या इंजीनियरिंग के छात्र हैं, मैनेजमेंट के छात्र हैं, या इस प्रकार का स्टाफ है। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मेरा देश मिसाइल बना सकता है। हमने मिसाइल बनाई है जो 3,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, लेकिन मोबाइल क्यों नहीं है, ये मेरे इंजीनियर भाइयों को सोचना पड़ेगा। सीकर की मार्केट के अंदर आप नेल कटर खरीदने के लिए जाएंगे तो आपको मेड इन कोरिया और मेड इन चाइना के नेल कटर मिलेंगे जिसमें जीरो टेक्निक है। इसलिए आज हम अपने देश को इस मुकाम पर दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है कि आने वाले 5-10 साल के अंदर हमारी 20 यूनिवर्सिटी कैडर पर होने चाहिए, उस स्थान पर होने चाहिए, दुनिया के विश्वविद्यालयों के बीच में खड़े होने चाहिए। आज हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, हमारे देश के जो इंस्टीट्यूट हैं, उनकी गणना उनमें होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शोभा सरिया इंस्टीट्यूट इस काम में योगदान दे सकता है, वो ये काम पूरा कर सकता है।
मैं आपकाधिक समय में देता है तो इसमें स्थान को बढ़ाना है और पुनः शिक्षकों को यही कहना चाहूंगा, आज हमें अच्छे वैज्ञानिकों की जरूरत है, अच्छे मैनेजमेंट के लोगों की जरूरत है और वो दोनों काम आगे आए और आशा करूंगा कि आपका आशीर्वाद हमारे लोकसभा को इस प्रकार से मिलता रहेगा। धन्यवाद। जय भारत। स्वप्न की चर्चा कर रहे थे, मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही थी अपने युवा साथियों को देखकर कि मंजिलें तो उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें तो उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। वो हौसला हमारे विद्यार्थियों में जागृत हो, इसलिए शोभा सरिया ग्रुप के सदस्यों ने भविष्य को देखते हुए इस अंधेरे में दीप का प्रज्वलन किया। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि 18 वर्ष पहले जिस बड़ी भावना को लेकर संस्थापकों ने इस संस्था का बीज वपन किया था, आज सचमुच वो वटवृक्ष बन गया है। थी और याद आ रहे थे माननीय प्रहलाद राय जी अग्रवाल तथा उनके सभी बंधु और साथी कि ध्येय निष्ठ हो अगर समर्पण, ध्येय निष्ठ हो अगर समर्पण, विनय पूर्ण हो प्रतिपद, सहज साधना में जीवन हो, राम कृपा हो संपद, मेवा पाने की न लालसा हो यदि अपने मन में, सेवा का छोटा सा पौधा बन सकता है बरगद। वो सेवा का छोटा सा पौधा आज बरगद के रूप में, वट वृक्ष के रूप में आपके इस शहर में खड़ा है। ये हम सब के लिए, कलकत्ते में बैठे हम सबको ये प्रतीत होता है कि कितना बड़ा काम इस शोभा सरिया परिवार ने किया है। पंक्ति कही थी, हमारे युवाओं के लिए भी बहुत कुछ कहा था, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। केवल अपने लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तभी हमारा जीवन सार्थक है, तभी हमें जीवन में कुछ करने के लिए सार्थकता प्राप्त होती है। Technical University under their respective streams. Recipient of RTU Gold Medal, RTU Chandler Medal in MBA stream, to be awarded with medal, certificate and check of 21,000. Nidhi Agarwal. Merit holder and are among the top 5 rankers in RTU for MTech program in electrical engineering, to be awarded with medal, certificate and a check of rupees 5,000. Hemlata Sharma. थोड़ा साइड में जाओ, थोड़े से सामने से। Recipient of RTU Silver Medal in Computer Science and Engineering, to be awarded with medal, certificate and a check of rupees 11,000. As she is not here today, her parents are here to receive the award on her behalf. Anamika Joshi. साइड में तो हो। Merit holder and among the top 5 rankers in RTU for MTech program in Computer Science, to be awarded with medal, certificate and a check of rupees 5,000. Stuti Devrashi.
Recipient of RTU Gold Medal in Civil Engineering to be awarded with medal, certificate and a cheque of rupees 21,000. Pooja Sharma. Secured 7th rank in RTU merit list, selected as JEN in Rajasthan State Electrical Board and qualified gate exam to be awarded with medal, certificate and a cheque of rupees 5,000. Apurva Yadav. तालियां बजती रहनी चाहिए।